Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine and staying safe at your homes. I am Asya Amreen Gul from Chemistry Department of Army Public School and College Fort Road, Rawalpindi. I'd like to welcome you all in APSEC online sport program of chemistry for grade 12th. Today I am here in week 6 of OSP session 2020. As you know that we had started chapter number 16, that is hydrocarbons, in previous weeks. Today is the lecture 1 of this week, and the topic which we are going to understand today is structure and physical properties of alkanes. This topic is given at page number 114 and 115 of your prescribed textbook. But before proceeding to our topic, I'd like to share the objectives of today's lesson. By the end of this lesson, you will be able to describe structure of alkanes with the help of examples, understand concept of constitutional isomers, comprehend different physical properties of alkanes, and compare physical properties of different isomeric alkanes. Before starting today's topic, let's have a quick recap of previous relevant topics. In chapter number 15, you learnt about functional group and homologous series. There you also studied the names of different families like alkanes, alkenes, alkynes, alcohols, alkyl halides, aldehydes, ketone, thiols, etc. In chapter number 16, you read about the classification of hydrocarbons. Then you gain an understanding of nomenclature of hydrocarbons according to IUPAC rules. Now onwards, we are going to discuss some major families of organic chemistry. This study will include their structure, their physical properties, and their chemical properties. So without much ado, let's start with the simplest family of organic compounds, alkanes. First is the structure of alkanes. In structure of alkanes, first of all, their formula is important. The generic formula of alkanes is CnH2n plus 2, where n represents the number of carbon atoms. All carbon atom in alkanes are sp3 hybridized. They are also saturated hydrocarbons. There you go. Carbon is sp3 hybridized. sp3 hybridization means आपके पास कितने hybrid orbitals बनेंगे? 4 hybrid orbitals are there, each is forming a bond with hydrogen atom, and the 4 hydrogen atoms are arranged in the form of a tetrahedron. Tetrahedral geometry है. The 2 hybrid orbitals are 109.5 degrees apart. Same is the case in ethane. Ethane is having 2 carbon atoms and 6 hydrogen atoms, and there you can see in ball and stick model that the 4 bonded hydrogen atom, the 3 hydrogen, and the overall this bond, the structure of both carbon atom is tetrahedral. Overall the geometry is tetrahedral geometry, as both of these carbon atoms are sp3 hybridized. Next member of alkane family is propane, next is butane, and next is pentane. Prop stand for 3 carbon, but stand for 4 carbon, and pent stand for 5 carbon. And their structure, their line angle formulas. In line angle formulas, hydrogen atoms are not shown. This is the list of table with first 10 alkanes with unbranched chains. Hexane, hex stand for again 6, hept stand for 7, ox stand for 8, non 9, and decane for 10. Next we will discuss phenomena of isomerism in alkanes. You must be familiar with this term. Isomerism is phenomena in which 2 organic compounds have same molecular formula but different structure formula. Starting from the simplest alkanes, that is methane, ethane, and propane, they have only one structure formula.
Next member, that is butane. It has two constitutional isomers. Constitutional isomers, what are constitutional isomers? Constitutional isomers are the isomers in which two different compounds have same molecular formula but they differ in their structure or sequence of bonding. They are also called structural isomers. Next, मीथेन की ब्यूटेन के हमारे पास two isomers हैं. One is this, in which 4 carbon atoms are arranged in the form of a single chain. Another one is 4 carbon atoms are there but they are not straight in the arranged in the form of single straight chain. It is a branch chain alkane, and one of the carbon atom is present in the form of a branch. If you look at the number of carbon atom and hydrogen atom, both structure contain 4 carbon atoms and 10 hydrogen atoms. Coming towards their IUPAC naming, the IUPAC name of this structure will be butane. And what about the IUPAC name of this? सेकेंड पोजीशन पे हमारे पास मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो नाम क्या होगा इसका? 2-methyl propene. So these are partially condensed formulas and these will be their strict formulas. तो overall हमारे पास ब्यूटेन के कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं? 2 आइसोमर्स पॉसिबल हैं. Next we are going to understand the properties of isomers. Isomers have different physical, chemical and biological properties. As you can see in this figure that the properties, which properties, physical properties में कौन कौन सी properties आते हैं? boiling point, melting point, density, solubility, all these are physical properties. तो जो ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स हैं, सिंपल ब्यूटेन एंड सेकेंड वन क्या था हमारे पास? 2-methyl propane. इन दोनों की ये प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है, मतलब इस बॉइलिंग पॉइंट में डिफ़र करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट में ये दोनों कंपाउंड्स डिफ़र करेंगे, इनकी डेंसिटी भी डिफरेंट होगी, सॉलेबिलिटी भी डिफरेंट होगी. तो इट मीन्स कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हैं. इसी तरह से सेम इज़ द केस विद द केमिकल प्रॉपर्टीज़. केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आते हैं हमारे पास केमिकल रिएक्शंस, कि मतलब जब हम इनको केमिकली रिएक्ट कराएंगे किसी भी सेम रिएजेंट के साथ, तो ओवरऑल 2 कंपाउंड्स के तौर पे जब ये बिहेव करेंगे तो बोथ ऑफ देम विल शो डिफरेंट केमिकल रिएक्शन. नेक्स्ट आइसोमर्स ऑफ पेंटेन पे हम आते हैं. आइसोमर्स ऑफ पेंटेन, देयर आर 3 constitutional isomers of pentane. The molecular formula is C5H12. So मतलब 5 carbon atoms. Possibility of arrangement क्या बनती है हमारे पास? एक possibility ये है कि हम 5 carbon atoms को straight chain की form में arrange कर दें. एक possibility ये है, मीन्स 4 को straight रहने दें और एक मिथाइल ग्रुप को उठा के कहाँ ले जाएं? सेकेंड कार्बन पे. जब आप एक मिथाइल ग्रुप लगा देंगे तो अंडरस्टूड है कि यहाँ से एक हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा? इस कार्बन के पास जहाँ से आपने मिथाइल रिमूव किया. तो एज अ रिजल्ट हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ये बन जाएगा. नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है? नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है हमारे पास कि हम दोनों मिथाइल ग्रुप्स को सेंटर वाले कार्बन पे ले जाएं. तो जब दोनों मिथाइल ग्रुप को हम इधर अरेंज कर देंगे तो व्हाट अबाउट दीज 2 हाइड्रोजन? ये तो हमें हटाने पड़ेंगे. तो एक हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे चला जाएगा, तो हमारे पास स्ट्रक्चर ये वाला फॉर्म हो जाएगा. ठीक है, दैट सेंटर में 2 मिथाइल ग्रुप, मतलब एक कार्बन आइटम है जिस पे 2 कार्बन है ब्रांचिंग की फॉर्म में. नाउ वी कम टूवर्ड्स देयर IUPAC नेमिंग. जब अगर हम इनको IUPAC नेम करेंगे तो क्या होगा? ये इसका नेम क्या बनता है? इसका नेम है पेंटेन. इसका नाम क्या होगा जी? इसका स्ट्रेट चेन है 4 कार्बन एटम्स की, तो पेरेंट चेन क्या हो जाएगी? ब्यूटेन. एक सेकंड वाले कार्बन एटम पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो यहाँ पे नेम करेक्ट नहीं है, 2 मिसिंग है, तो द नेम इज 2-methyl ब्यूटेन. इसके IUPAC नेम पे आते हैं तो स्ट्रेट चेन, ये स्ट्रेट चेन भी हो सकती है, ये स्ट्रेट चेन भी हो सकती है. तो उस रेफरेंस से जब हम IUPAC नेम लिखेंगे तो द नेम विल बी 2,2, बेसिकली यहाँ पे 2,2 मिसिंग है, 2,2-dimethyl propane. इसको आप ट्रिवियल नेमिंग में एन पेंटेन कहते हैं, इसको आइसोपेंटेन कहते हैं और इसको नियोपेंटेन कहते हैं.
इसी तरह से जब हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज करते जाएंगे, मतलब हम हेक्सेन पे आएंगे, तो हेक्सेन के कितने आइसोमर्स बन सकते हैं, मतलब कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं 6 कार्बन एटम को डिफरेंट स्ट्रक्चर में अरेंज करने की, तो देर आर 5 पॉसिबिलिटीज़, 5 आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन, 5 constitutional isomer of hexane are possible, or we can say 5 structural isomers of hexane are possible. नेक्स्ट, जैसे जैसे आप कार्बन आइटम इंक्रीज करते जाएंगे, नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स भी इंक्रीज हो जाएंगे. नेक्स्ट है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स में हमारे पास सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आती है वो आती है फिजिकल स्टेट. फिजिकल स्टेट में कार्बन नंबर 1 to 4 are colorless, odorless gases, C5 to 17 are colorless, odorless liquids, and C18 onwards are solids. जी, गैसेस हैं, लिक्विड्स हैं, सॉलिड्स हैं. 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है हमारे पास. अगर हम इन स्टेट्स का ही डिफरेंस देखें तो इनमें स्टेट्स में क्या डिफरेंस है? द मेन डिफरेंस इज देयर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. मतलब सॉलिड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होती हैं, लिक्विड में कंपैरेटिवली वीक होती हैं, और गैसेस में उससे भी सबसे ज़्यादा वीक होती हैं. इसका मतलब है कि हमारे पास ये मतलब कि ओवरऑल स्टेट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. तो जब हम बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की इन एल्केन्स, तो हमारे पास कौन सी है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस? एल्केन्स क्या है? नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं. ठीक है, नॉन पोलैरिटी इसकी आगे आ जाके हमने डिस्कस भी करनी है केमिकल बिहेवियर में डिटेल से. तो एल्केन्स क्या है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं. फर्स्ट ईयर में भी आप डिस्कस कर चुके हैं सेम थिंग. तो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में फोर्सेस होती हैं, दे आर वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, और इनको हम लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस भी कहते हैं. सो लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस का आप एक फैक्टर पढ़ा था आपने कि लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ मॉलिक्यूल. कि मॉलिक्यूल का साइज जितना स्मॉल होता है उतना ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होंगी? वीक होंगी. और जैसे जैसे मॉलिक्यूलर साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि मॉलिक्यूल का साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, तो उसके साथ साथ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ भी इंक्रीज़ होगी. जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हुई तो पहले वो गैसेस में थे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत वीक थी. जब C5 पे हम आए तो वो लिक्विड्स में कन्वर्ट हो गए, मींस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज़ कर रहे हैं. और जब C18 मतलब कार्बन चेन बहुत लॉन्ग हो गई है, उस वक्त फोर्सेस कहने को लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस ही होंगी, लेकिन वो इतनी स्ट्रांग हो जाएंगी कि स्टेट हमारे पास क्या हो जाएगी? सॉलिड. नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारे पास सॉलिबिलिटी. सॉलिबिलिटी में फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कि एल्केन्स, जैसे अभी मैंने बताया कि एल्केन्स आर नॉन पोलर इन नेचर. नॉन पोलर हैं तो ऑब्वियसली हम पहले पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में ही, सॉलिबिलिटी किस रूल के अकॉर्डिंगली होती है? लाइक डिसॉल्व लाइक के अकॉर्डिंगली. सो जब ये नॉन पोलर हैं तो कौन से सोल्यूट्स में डिसॉल्व होंगे? नॉन पोलर सोल्यूट्स में. कौन से सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होंगे? नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में. नॉन पोलर सॉल्वेंट्स कौन से हैं? बेंजीन, ईथर एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड आर एग्जांपल्स ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट्स. तो कंपैरिजन अगर हम करें कि वाटर में ज़्यादा डिसॉल्व होंगे या बेंजीन में, तो वाटर क्योंकि एक पोलर सॉल्वेंट है तो वाटर में इनकी सॉलिबिलिटी बहुत कम होगी या होगी ही नहीं, डिसॉल्व होंगे ही नहीं. तो बेसिकली सॉलिबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर साइज. मतलब कि जितना स्मॉल, अब जब हम सॉलिबिलिटी की बात कर रहे हैं तो स्मॉल जो मॉलिक्यूल्स हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में जल्दी डिसॉल्व हो जाएंगे, जबकि जितना बड़ा साइज़ होगा, मतलब कि जो आपके पास सॉलिड एल्केन्स हैं वो उनको अगर आप डिसॉल्व करना शुरू करेंगे तो ओवरऑल जितना कार्बन एटम्स ज़्यादा होंगे उतनी ही उसकी डिसोल्यूशन देर से होगी. सॉलिबिलिटी डिक्रीज़ करेगी विद इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास. जी, हम आते हैं सॉलिबिलिटी के रूल पे कि ओवरऑल इनमें कौन सी, अभी हमने अट्रैक्टिव फोर्सेस डिस्कस कर ली लास्ट स्लाइड में, दैट द अट्रैक्टिव फोर्सेस अमंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आर वैन डर वाल्स फोर्सेस. और इसी तरह से अगर हम नॉन पोलर सॉल्वेंट्स को देखते हैं तो नॉन मोलर सॉल्वेंट्स में भी जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं मॉलिक्यूल्स के दरमियान में, वो कौन सी होती हैं? वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन.
तो इसी तरह से जब ब्यूटेन को हम इसमें डालेंगे तो देयर इज़ सिमिलैरिटी इन बिटवीन द इंटरेक्शन, इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन। तो ये हमारे पास मेन रूल है कि आपके पास सिमिलैरिटी इन स्ट्रक्चर भी होनी चाहिए और सिमिलैरिटी इन इंटरेक्शन भी होनी चाहिए। तो स्ट्रक्चर में सिमिलैरिटी क्या है, ये भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है। सिमिलैरिटी इन इंटरेक्शन क्या है कि इसमें भी वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है और ब्यूटेन के मॉलिक्यूल्स के दरमियान भी वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। तो इट मीन्स कि जब हम इनको आपस में मिक्स करेंगे तो आपस में भी इन मॉलिक्यूल में कौन सी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएंगी, वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। एज अ रिजल्ट ब्यूटेन विल easily dissolve in carbon tetrachloride और टेट्राक्लोरोमीथेन। नेक्स्ट डेंसिटी है, दे आर लेस डेंस देन वाटर, दैट्स वाई। और जो भी चीज़ डेंसिटी जिसकी कम होती है वो क्या करती है, वाटर पे फ्लोट करती है। नेक्स्ट आते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स पे। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डेंसिटी एक्सेट्रा इंक्रीज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जी, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, जब आपने किसी भी चीज़ को मेल्ट करना है, किसी भी चीज़ को बॉयल करना है, तो आपने बेसिकली क्या करना है, इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस को ब्रेक करना है। तो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस अभी हमने स्टेट में डिस्कस कर लिया कि जैसे जैसे हम हायर एल्केन्स की तरफ जा रहे हैं, कार्बन एटम इंक्रीज कर रहा है, तो हमारे पास इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो रही हैं और वही हमें उसी वेरिएशन की वजह से उनकी स्टेट डिफरेंट होती जा रही है। तो ओवरऑल जितना साइज ज़्यादा होता जाता है इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी और जितनी इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी उतना ही उनको मेल्ट करना, उतना ही उनको बॉयल करने में ज़्यादा टाइम लगेगा हमारा, और एज अ रिज़ल्ट मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या कर जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। So the boiling point increases by 20 to 30 डिग्री सेल्सियस फॉर एडिशन ऑफ ECH2 ग्रुप। मतलब कि आप एक मॉलिक्यूल से नेक्स्ट मॉलिक्यूल पे जब मूव करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट में कितना चेंज आता है, 20 to 30 डिग्री सेल्सियस का। मतलब अगर आप ब्यूटेन से पेंटेन पे जाएंगे तो ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा और पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। और कितना इंक्रीज करेगा, बाय 20 to 30 डिग्री सेल्सियस। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। जी, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस अमंग द मॉलिक्यूल्स। एल्केन्स आर नॉन पोलर सो दे कंटेन वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल। एज द मॉलिक्यूल साइज ऑफ स्ट्रेट चेन एल्केन इंक्रीजेस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द मॉलिक्यूल। As a result, larger molecules have greater surface area, high London disparian forces of attraction, and this results in strong van der Waals forces between the molecule. More energy is needed to separate the molecule during boiling. मतलब ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो ऑलरेडी मैंने आपको बताए कि ओवरऑल जितनी लार्ज मॉलिक्यूल होगा उतना ही उसमें लंडन डिस्पेरियन फोर्सेस स्ट्रॉन्ग डेवलप होंगी। एज अ रिज़ल्ट उन फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए होगी। जब ज़्यादा एनर्जी देनी है तो हमें ज़्यादा टाइम के लिए हीट करना पड़ेगा, और जब हम ज़्यादा टाइम के लिए हीट करेंगे तो व्हाट अबाउट देयर बॉइलिंग पॉइंट, इट विल ऑब्वियसली इंक्रीज। यहाँ पे डायग्रामेटिकली इस चीज़ को दिखा दिया गया है सिंपल कि मॉलिक्यूल छोटा है तो इंटरेक्शन कम है, मॉलिक्यूल चेन बढ़ गई है, हमारे पास चेन लॉन्ग हो गई है, तो लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन हैव मोर इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस सो दे बॉयल एट हायर टेम्परेचर। नेक्स्ट इज़ कंपैरिजन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक एल्केन्स। कि अब हमारे पास जब आइसोमर्स होते हैं, मतलब ब्रांच चेन के आइसोमर्स को अगर हम बेसिकली कहें तो स्ट्रेट चेन एल्केन्स हैं और वो ब्रांच चेन एल्केन्स हैं। तो बेसिकली आइसोमेरिक एल्केन्स के बॉइलिंग पॉइंट में क्या डिफरेंस होता है, तो द ब्रांच चेन एल्केन्स हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट्स देन आइसोमेरिक नॉर्मल चेन एल्केन्स। For example, boiling point of N-butane is 0.4 डिग्री सेल्सियस and the isobutane is -10। ये हम पढ़े हैं अभी दोनों आइसोमर्स ब्यूटेन के, मतलब ब्यूटेन मीन्स 2-मिथाइल प्रोपेन, आइसोब्यूटेन क्या है, इस आयुर्वेदिक नेम इसका 2-मिथाइल प्रोपेन है कि 2-मिथाइल प्रोपेन का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जबकि जो सिंपल स्ट्रेट चेन है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ऐसा क्यों है,
This is due to the molecule of branched chain alkanes are more spherical in shape and have smaller area of contact. अभी जिस तरह से एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट की मैं बात कर रही थी, तो ब्रांचिंग में आने से मॉलिक्यूल का साइज़ क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है. एज अ रिज़ल्ट उसका सरफेस एरिया स्मॉल हो जाता है और उसका कांटेक्ट दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कम होता है. तो जब कांटेक्ट कम होगा, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कम होंगे, तो हमारे पास व्हाट अबाउट द वैन डर वाल्स फोर्सेस, द वैन डर वाल्स फोर्सेस बिटवीन दीज मॉलिक्यूल्स बिकम वीकर. Here is the example of pentane, isopentane and neopentane के basically straight chain है, overall larger area of contact है. जितना आपके पास branching में आता जाएगा molecule spherical होता जाएगा और उसका area of contact with other molecule कम होता जाएगा. जी, यहाँ पे हमारे पास लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस डेवलप करके दिखाई हैं कि ये देखें कि जब हमारे पास स्ट्रेट चेन है तो ओवरऑल लार्जर एरिया ऑफ कांटेक्ट है, तो इट मींस कि ये स्ट्रेंथ है लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस की, कि ये पूरी आपके पास हर जगह से इनमें इंटरेक्शन डेवलप होगा और एज अ रिज़ल्ट जो लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस होंगी वो स्ट्रॉन्ग डेवलप होंगी. जितना मॉलिक्यूल का साइज़ हम स्मॉल करते जाएंगे, मतलब मॉलिक्यूल सरफेस एरिया उसका स्मॉल करेंगे, ब्रांचिंग में जाने से सरफेस एरिया क्या हो गया, स्मॉल हो गया है, उसका इंटरेक्शन दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कम होगा. एज अ रिज़ल्ट वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप होंगी. जब वीक होंगी तो इट मीन्स जल्दी ब्रेक हो जाएंगी. जल्दी ब्रेक होने से व्हाट अबाउट इट्स बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा. इसका 36 है, इसका 27 है. और जब हम नियोपेंटेन पे जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत कम इंटरेक्शन है इन दोनों में. मतलब इन तीन लाइंस को आप कंपेयर करें कि ये आपको लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस की स्ट्रेंथ बता रही है कि ये लॉन्ग, जितनी बड़ी ये लाइन है इट मीन्स उतनी ही स्ट्रॉन्ग लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस हैं, और जितनी ये लेंथ लाइन की लेंथ क्या होती जा रही है, स्मॉल होती जा रही है, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस का मतलब क्या है, वीक डेवलप हो रही हैं. इस वजह से जो हमारे पास नियोपेंटेन है इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, सबसे कम है. The same phenomena is depicted in this diagram कि आपके पास जितना सफेरिकल मॉलिक्यूल होता है उसका दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कांटेक्ट उतना ही कम हो जाता है. जितना आपके पास स्ट्रेट चेन की फॉर्म में मॉलिक्यूल होता है उतना उसका दूसरे मॉलिक्यूल के साथ एरिया ऑफ कांटेक्ट इंक्रीज कर जाता है, विच इंक्रीजेज द स्ट्रेंथ ऑफ लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस. In the end, we will conclude our whole lecture. What we have studied that alkanes are saturated hydrocarbons. हमने कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स के बारे में पढ़ा, क्या होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स. आर सेम मॉलिक्यूल आर द कंपाउंड्स हैविंग same molecular formula but different connectivity of atoms. We have learned about the physical properties of alkanes and then physical properties में क्या क्या पढ़ा हमने, melting point डिस्कस किया, boiling point, density and physical state. In the end we compared the boiling points of straight chain alkanes and branched chain alkanes. Given the same total number of carbon atoms, branched chain alkanes have low boiling point than straight chain alkanes. This is given here that the boiling point of branched chain alkane is less than boiling point of straight chain alkanes, and the reason for this was that branched chain alkanes are compact, having less surface area and smaller London dispersion forces or weaker London dispersion forces, and this is the reason of their low boiling point. This was all about the physical characteristic of alkanes. I tried my level best to make it easy to understand for you, but in case of any confusion you may contact your relevant subject teacher. Thank you.